Good afternoon, students. So yesterday we have learned some examples based on the compound interest or simple interest. Okay. So today we are going to learn some more problems on a compound interest. So first problem is that what sum will amount rupees 4,000 in 3 years? Okay. So we have to find the amount to rupees 4,000. What sum means we have to find the principal, and will amount to rupees 4,000. It means A is equal to 4,000 in 3 years. 3 years mean N is equal to 3, and at 6% per annum, that is 6 is the rate of interest, R, compound interest. So what we have given, so first is equal given, that is compound amount is equal to 4,000, N is equal to 3, and R is equal to 6. Okay, so what we have to find? Principal amount. Okay, so use the formula of amount, that is amount is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. Okay. So substitute the value, that is amount is given, that is 4,000. P is not given, so write P as it is. 1 plus R is equal to 6. 6 upon 100 bracket raised to N is equal to 3. Okay, so 4,000 is equal to P in bracket 100 plus 6, that is 106 upon 100 raised to 3, that is 4,000 is equal to, if we divide 106 by 100, we get, that is 1.06 bracket raised to 3. So you get the value of P, which is equal to 3,358.5. So this is the principal amount. Okay. So next problem is find the amount of rupees 4,500 at 12% per annum in 4 years and compounded half yearly. So find the amount. It means we have to find the A of rupees 4,500. It means P is equal to 4,500. 12% means R is equal to 12 and N is equal to 4. Okay, so write down the first given part, that is the given is equal to principal amount, that is 4,500, R is equal to 12, N is equal to 4, compounded half yearly. Here given the compounded half yearly, so rate of interest is for half year, and amount we have to find. Okay, so R is equal to हाफ इयरली आता काय करताय, इंटरेस्ट पे करताय, आणि आपल्याला हा जो काही 12% दिलाय तो एक ॲन्युअलचा दिलाय, म्हणजे 12 मंथचा दिलाय. तर 12 मंथसाठी जर 12 असेल तर हाफ इयरली दॅट इज 6 मंथसाठी किती असणार आहे, 6. सो हियर वी हॅव टेकन की R is equal to 6. So R is equal to 6 because half yearly. Okay. So take the formula of A, that is P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. Okay, so substitute the value of P, that is P is equal to 4,500 in bracket 1 plus R is equal to 6 upon 100 bracket raised to N means 4. Then 4,500 into 100 plus 6, that is 106 upon 100 bracket raised to 4. Again 4,500 into 1.06 bracket raised to 4. So value of amount is, here N is equal to 4. Here we cannot take the N is equal to 4 because 4 years and half yearly means कितनी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी हाफ ईयरली 4 years के लिए, 4 to 8. तो हियर सब्स्टिट्यूट N is equal to 8. N is equal to 8. ये ईयरली है और ईयरली ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स
मतलब जो पीरियड है वो क्या होगा 8 टाइम्स उनको क्या करनी पड़ेगी, वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू 8 और वैल्यू ऑफ इज 7,200 rupees. So this is the compound amount. A is equal to 7,200. So next question is, next problem is, find the interest on rupees 15,000 for 5 years at 8% per annum compounded half yearly. Here also given the compounded half yearly. It means 5 years. So n is equal to 5 to 10. So here n is equal to 10 and percent. This is the rate of interest is per year. So for annum the rate of interest is 4. That is r is equal to 4. So p is equal to 15,000. N is equal to half years, that is 5 years, that 10. R is equal to 8. So use the formula. E is equal to third. P is equal to 15,000 for 5 years. So 5 years. So n is equal to 5 years and 8 r is equal to 8 per annum. But this is the compounded half yearly. So here n is equal to 10 and r is equal to 4. So use the formula of amount, that is P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. So P is equal to 15,000. 1 plus R is equal to 4 upon 100 bracket raised to n, that is which is equal to 10. So 15,000 100 plus 4 104 upon 100 bracket raised to 10, that is the 15,000 1.04 bracket raised to 10. So answer is, amount is equal to 8,000, amount is equal to 23,803. So this is the amount. Okay, and so to calculate the compound interest, use the formula, that is compound interest is equal to, amount minus principal. That is amount is 23,803 and minus is 15,000. So 8,803. So this is the compound interest. Okay. Next problem is, find the compound interest on rupees 5,000 on rupees at 4% per annum for 5 years. Okay, so on rupees 5,000, it means P is equal to 5,000 4% per annum, that is R is equal to 4, and for yearly, that is N is equal to 5. Okay, so write down the first given part, that is P is equal to 5,000, R is equal to 4 and N is equal to 5. So amount is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. That is amount is equal to P is equal to 5,000. 1 plus R is equal to 4 upon 100 bracket raised to 5. That is amount is equal to 5,000. 100 plus 4 104 upon 100 raised to 5. That is 5,000 into 1.04 bracket raised to 5. So amount is equal to 6,083.264. So this is the amount. And compound interest is equal to
amount minus principal. So what is the amount? 6083.2604 minus 5000. Okay, so answer is 1083.264 rupees. So this is the compound interest. Okay. प्रत्येक ठिकाणी अमाऊंटसाठी जर दिलेली असेल अमाऊंट तर अमाऊंटसाठी हाच फॉर्म्युला यूज करायचा, पी इन ब्रॅकेट 1+r/100 दिली असेल किंवा कॅल्क्युलेट करायची असेल कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये तर हा फॉर्म्युलाच टाकायचा. अमाऊंट इज इक्वल टू पी इन ब्रॅकेट 1+r/100 ब्रॅकेट रेस टू एन आणि त्यानंतर कंपाऊंड इंटरेस्टसाठी अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल. फक्त इकडे सिंपल इंटरेस्टमध्ये आपण डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला यूज करतो PRN/100, पण इकडे मात्र कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये अमाऊंटचा फॉर्म्युला यूज करायचा नंतर कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करायचं. Next is find compound interest on rupees 4000 for 5th year when the rate of interest is 8% per annum. 4000 वर 5th वर्षांसाठी रेट ऑफ इंटरेस्ट किती दिला आहे? 8% per annum. Okay, so calculate compound interest again on rupees, that is P is given, that is P is equal to 4000, R is equal to 8 and N is equal to 5. Use the formula again, amount is equal to P in bracket 1+r/100 bracket raised to N. Okay, so amount is equal to, here what is the question is given? Well, read carefully. Find compound interest on rupees 50,000 for the 5th year. For 5 years नहीं, 5th years मतलब 5th साल के लिए, ओनली 5th साल के लिए, टोटल नहीं. आफ्टर 5th years नहीं बोला उन्होंने. 5th साल के लिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 साल तक उसने कितना पे किया रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और 5 साल के लिए भी कितना किया ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी तो वो क्या आएगी? 5th साल के लिए वो क्या करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वो भरेगा सिर्फ 5th साल के लिए. सपोज वो 4th ईयर तक 10,000 भर रहा है और 5th ईयर तक 15,000 भर रहा है. इसका मतलब 15,000 माइनस 10,000, 5,000 ये 5th ईयर का उसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया. तो वो हमें 5th ईयर के लिए फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू P 4000 इन ब्रैकेट 1+r मतलब 8/100 ब्रैकेट रेस टू N इज इक्वल टू 5. तो ये कैलकुलेट करेंगे 4000 100 + 8 108/100 रेस टू 5 दैट इज 4000 इंटू 1.08 ब्रैकेट रेस टू 5. अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वो कैलकुलेशन ये 5th ईयर के लिए हो गया और 4th ईयर के लिए फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा. 1+r/100 ब्रैकेट रेस टू N. तो अमाउंट इज प्रिंसिपल 4000, 1+r की वैल्यू 8/100, बस N की जगह क्या डालना पड़ेगा हमें? 4. तो उसका कैलकुलेशन 4108/100 रेस टू 4 दैट इज 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 ब्रैकेट रेस टू 4. अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें? सब्ट्रैक्शन. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5th ईयर के लिए इज इक्वल टू ये 5th साल के लिए जो है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 रेस टू 5 माइनस 4000 1.08 रेस टू 4. तो इन दोनों का इन सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा 435.37. तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के सब फॉर्मूले और सब प्रॉब्लम्स. ओके, देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5% पर एannum, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट इफ कंपाउंड इज डन क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब क्या किया? 4 मंथ के बाद क्या किया है? वो इंटरेस्ट पे किया है. तो 4 ईयर्स के बाद इसका मतलब सपोज प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज ली और पीरियड सपोज 1 ईयर का है
तो उसको एक साल में कितनी बार वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 3 क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट्स होंगे, मतलब 3 मंथ्स का क्या होगा, एक एक पार्ट, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, अगेन 9 मंथ्स के बाद एंड 12 मंथ्स के बाद, मतलब टोटल पीरियड 4 होंगे। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वही पूरा 12 मंथ के लिए 10.5 है, तो 3 मंथ के लिए क्या आएगा, वो 10.5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 पार्ट्स में क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट्स में वो पूरा ईयर डिवाइड हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5/4, तो 2.625 आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितनी बार वो भर रहा है, तो पूरे साल में वो 4 टाइम्स क्या कर रहा है, पे कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहा है। इसका मतलब n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आएंगे, टोटल 4 आएंगी। और फिर अमाउंट के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि प्रिंसिपल डाली हमने 100 1 प्लस आर की वैल्यू 2.625 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज़ टू 4, और इसका कैलकुलेशन आया 110.92, ये हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.92%। ओके, अब जब अगर हम हाफ ईयरली करते हैं, हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा 10.5/2, और n इज इक्वल टू डबल, मतलब 6 मंथ के बाद एक और 12 मंथ्स के बाद एक, मतलब पूरे साल में वो 2 टाइम्स क्या करेगा, इंटरेस्ट भरेगा, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो फिर से हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 100 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5.25 अपॉन 100 ब्रैकेट 2, तो इसका आंसर आया 10.78, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.78। और अगर हम क्वार्टरली भरते हैं तो 10.92, ओके, और अगर ईयरली भरते हैं तो 10.5, मतलब जैसे हम ज़्यादा क्वार्टरली भरते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाफ ईयरली देखो ये ईयर के लिए 10.5 है, हाफ ईयरली किया तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 10.7, और उसके क्वार्टरली किया तो 10.92, मतलब हम जितने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल एन्युटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एन्युटीज? We know that the loans are made available by banks as well as other financial companies for the purchase of household items like furniture, TV sets, refrigerator, to costlier items like flats, luxury cars, etc. हमने आपको पता होगा कि जब हम टीवी या कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें हफ्ते बोलते हैं ना हम उसको, तो ये क्या करते हैं, एन्युअली या मंथली क्या करते हैं, हमें वो डिवाइड करके देते हैं कि इतनी रकम आपको 1 मंथ में हर महीने में भरनी होगी, या तो हर ईयर के लिए उतनी। जब हम घर खरीदते हैं तो घर खरीदते समय हमें क्या करते हैं, बेसिक अमाउंट, मतलब हम बेसिक अमाउंट भरते हैं, और बेसिक अमाउंट भरने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहती है, कैश डाउन बोलते हैं हम उसको, डाउन पेमेंट, तो बेसिक अमाउंट हम भरते हैं, और फिर जो बची हुई रकम है उसके क्या करते हैं, हमें इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहता है या तो ईयरली इंस्टॉलमेंट्स रहता है, तो वो हम पे करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सिंपल एन्युटीज। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एन्युटीज आर इंश्योरेंस, प्रीमिया, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा, दीज आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स। फ्लैट ये भी हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट से क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशंस दी है, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड वगैरह। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले दिया है, पी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू जो भी अभी करंट वैल्यू है तो उसको पी कहेंगे। एक्स मतलब पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, हमें कितनी इंस्टॉलमेंट में भरनी है, मतलब कितनी रकम भरनी है, पूर्ण रकम एक हफ्ते में कितनी रकम भरनी, उसको पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने हमें इंस्टॉलमेंट्स आते हैं वो, तो वो रहता है। और i इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपीज पर पीरियड, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर के लिए और 100 रुपीज पे रहता था, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल एन्युटी इंस्टॉलमेंट्स रहते वो क्या रहती है, हमें हर 1 रुपीज के लिए और 1 पीरियड के लिए रहती है। और a इज द अमाउंट ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी, देन फॉर्मूला इज p इन ब्रैकेट x अपॉन i इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू,
अब अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन देखो, 1/p माइनस 1/a. p मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, a मीन्स अमाउंट वैल्यू. So 1/p minus 1/a is equal to I upon x. I means rate of interest, I, or x means periodic installment. Okay. So these are the formulae of present value and relation between amount and present value of a perpetuity. So these are the formulae. ओके, सो इस बेस पे हमें क्या करने हैं, प्रॉब्लम्स देखने हैं. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके सिंपल एन्युटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.